नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज। कल दिनांक 14 दिसंबर 2024 को सकमन भाग्य फाउंडेशन द्वारा मिशन शक्ति के प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए देश भर से अलग अलग मॉडल्स को बुलाया गया और हिंदुस्तानी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए फैशन शो का आयोजन भी किया गया। बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में कुछ खास मुख्य अतिथि भी मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। बता दें कि सकमन भाग्य फाउंडेशन के डायरेक्टर आशुतोष कुमार इससे पहले भी ऐसे प्रोग्राम करते आ रहे हैं, जिसमें वह हमेशा देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर फैशन शो की बात करें तो इस बार ये फैशन शो का चौथा सीजन था, जिसमें अलग अलग राज्यों से लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साड़ी, जो कि भारतीय महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा खास और पसंदीदा पहनने की चॉइस है, उसे पहनकर रैंप वॉक किया, जिससे भारतीय सभ्यता को भी सम्मान मिला। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस पूरे कार्यक्रम में स्पेशल चिल्ड्रंस को भी रैंप वॉक करने का मौका दिया गया, ताकि उन्हें भी अपने जीवन में सामान्य बच्चों की तरह कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिले। Myself Asutosh Kumar, Director Sakman Bhagya Foundation. Sakman Bhagya Foundation presents Mission Shakti. Our umbrella is Mission Shakti. In this, we are doing Rashtriya Nari Ratna Awards Victory Day celebration. We are doing on 14 December today at the Park Hotel. The highlights of these events are honoring the heroes of the Vijay Divas, Nari Ratna Awards, followed by special children on the ramp for National Fashion Show Season 4. The main agenda of our foundation is for the boosting women empowerment. जो हमारे ऑनरेबल पीएम का जो विजन है कि 2047 our country should be self-independent for women empowerment. तो एक स्मॉल मुहिम हमारा फाउंडेशन स्टार्ट कर रहा है उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ सेक्टर्स के लिए, उनके टूरिज्म के लिए, उनके अपब्रिंगिंग्स के लिए। ये तो आवर फाउंडेशन in future, and what we are doing from the next year, we are doing the combined marriages of underprivileged persons, their daughters. We are making them their marriages under one roof. So this we are doing that mission Shakti. That's our umbrella is only the mission Shakti. वो है तो हम है तो सब है. Without them, we are nothing. So the best thing, the best attire about this our foundation, the Sakman Bhagya Foundation, is that we are always dedicated for the women development and the special children's development. We will be organizing the events for the armed forces, which includes the Kargil Vijay Divas. Last season, it was from the Magar production. We had opened a Magar production also. For last 2 years, Magar production, I'm the founder of Magar production, who is doing all the events, fashion shows, all events it is done by the Magar production. Now, we have opened a foundation for the upbringing of the women empowerment of our nation. So I request each and everyone from the different corners of our country, please come join with our Sakman Bhagya Foundation, and please go walk with the mission what we have, Mission Shakti. वो है तो हम है तो सब है. Without them, we are nothing. So at last but not the least, I'm very much thankful to everyone who has came and make this a grand success. Thank you. Jai Hind. टुडे हम लोग जो आज यहाँ पे जमा हुए हैं, बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि सकमन भाग्य फाउंडेशन ने इतना अच्छा, इतना बड़ा इवेंट दिल्ली में किया है। आई एम जॉइंड विद टुडे विद रुबल नागी जी, जो कि फाउंडर हैं रुबल नागी आर्ट फाउंडेशन की। Especially for this occasion, she has flown from Mumbai. She has been working in the field of women empowerment for last 20 years. 20 सालों से मैम का ये काम है और आज हम खुशकिस्मत हैं मैम कि आप यहाँ आए। And if you guys have any questions, आप प्लीज मैम से पूछ सकते हैं। देखिए, हमारा मेन फोकस रहता है रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन, जो एक 14 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, आज देश भर में काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टेट है जिसमें हमारी इंटरवेंशन नहीं हुई है। और हमारा मेन फोकस 2 चीज़ों पे रहता है। पहला है क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा को और कैसे बेहतर बनाया जाए। हम सब जानते हैं हमारे देश में 8वीं कक्षा के बाद बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 10वीं के बाद 12वीं तक नहीं पहुंचते और 12वीं के बाद आगे कॉलेज नहीं पहुंचते। तो हम कैसे वो जो गैप है बच्चों का ड्रॉप आउट होने का, उसको ब्रिज करें। तो आज ऑलमोस्ट 2 मिलियन बच्चे हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम स्कूल तक पहुंचाते हैं।
दूसरा हमारा फोकस रहता है महिलाओं को सक्षम करना, और मेरा मानना है कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर तब तक नहीं होंगी जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी. टिल द टाइम आवर women आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वी कैन नॉट से दे आर एम्पावर्ड. हर महिला को हक है अपने पैसे कमाने का और उसको अपनी मर्जी से खर्चा करने का. सो हमारा दूसरा फोकस स्किलिंग के ऊपर होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग और अलग अलग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के माध्यम से हम उनको पहले सिखाते हैं और उसके बाद आगे एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं जिससे वो रोज़गार कमाने का आगे ज़रिया उनके लिए बन सके. उसका हमारा इनिशिएटिव का नाम है लर्न एंड अर्न. बहुत आसान है एक स्किल सेंटर खोल देना, वहाँ कुछ मशीनें लगा देना, इक्विपमेंट्स लगा देना और लड़कियों को सिखाना. सबसे बड़ा चैलेंज आता है सीखने के बाद कमाए कहाँ. जैसे हमारे जो युवा हैं वो पढ़ाई करते हैं, कॉलेजेस से निकलते हैं, फिर सबसे ज़्यादा उनकी जो जद्दोजहद है वो है नौकरी ढूंढने में. सो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी है कि पढ़ने के साथ साथ स्किल कोर्स करने के साथ साथ आगे हम उनको कमाने का ज़रिया भी दें. तो इसलिए हमने ये लर्न एंड अर्न को कुछ साल पहले लॉन्च किया था, जहाँ पे ये लड़कियाँ सीखती हैं. और इनमें से ज़्यादातर जो हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो कॉलेज गोइंग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा होना क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि 40 के ऊपर है, कुछ 50 के ऊपर है, बट उनकी जो आर्थिक जो कंडीशन है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो सीख के कुछ कमाना चाहती हैं. और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि 8 लाख के ऊपर महिलाएं पूरी देश भर की हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़ी हैं, अच्छा कमा रही हैं. और मुझे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप वो पहला कदम उठाइए, आपको 10 नहीं 100 कदम आगे लेके जाएंगे, लेकिन वो सबसे पहला कदम आत्मनिर्भरता की ओर जो हमें बढ़ाना है वो आपको ही मन बना के बढ़ाना है. तो मुझे बहुत खुशी है. और अभी मैं आशुतोष जी से भी बात कर रही थी, कर्नल अभिनव से भी बात कर रही थी और पूछ रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है. ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली काफ़ी नई है, उन्होंने बताया 1 साल हुआ है, बट मेरा हमेशा मानना है कुछ अच्छी एनजीओज, कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जब एक साथ जुड़ती हैं और आगे आती हैं तो अच्छे काम होते हैं. कहीं ना कहीं एक भारतीय होने के की जगह हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या करें. हम टू बी अ प्राउड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. आई एम डॉटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मैं अब मुंबई में रहती हूँ और एक आर्मी ऑफिसर की डॉटर हूँ. तो मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से ये सिखाया है कि आप कुछ भी करें, कहीं पे भी जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने सॉइल से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहें. और आई एम ब्लेस्ड कि आज मैं जो काम करती हूँ कहीं ना कहीं हमारे लोगों को उससे बेनिफिट होता है. इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है. एंड मैं यही कहूँगी आशुतोष जी कि आप पैशन बना लें अगर सोशल वर्क को अपना, तो आप देखेंगे कि आपको जर्नी में आगे और बहुत अच्छा लगेगा. उन्होंने मुझे बताया कि वो महिलाओं के काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं. बहुत सारी गरीब बच्चियां हैं जिनकी इन्होंने शादियां भी करवाई हैं और आगे भी करवाएंगे. तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना चाहिए और मिलके अच्छा काम करना चाहिए. हाथ से हाथ जुड़ता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट Thank you, ma'am. एंड Thank you. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू कर्नल अभिनव. थैंक यू. नमस्कार, मैं रोमा मंसूर हूँ, केरला से आई हूँ. आर एंजल्स की फाउंडर एंड सीईओ हूँ और सगमान भाग्य फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी भी. तो ये तीसरी बार है हम लोग ये स्पेशल बच्चों का इवेंट इधर कर रहे हैं. और पिछली 2 बार तो दिल्ली से आए थे बच्चे, इस बार केरला से हम लोग आए. डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ केरला 2 टीम है. ये बच्चे पूरा ट्रेन में इतना खुद अपना एफर्ट लेके आए हैं इधर, तो बहुत गर्व की बात है. आज सगमान भाग्य फाउंडेशन की इस मंच पर बच्चों को ये मिला है, बहुत सारा ऑनर मिला है. आई थिंक सारी तो इंडियन कल्चर में आता है, सो वी ब्यूटीफुली ड्रेप्ड इट एंड मैं चाहती हूँ इसको तो इंटरनेशनल पे और अच्छे तरीके से लाए. सो आई एम वेरी ग्लैड एंड ऑनर्ड टू वेयर दिस ब्यूटीफुल साड़ी. आई लव टू वेयर साड़ी, एक्चुअली आई लव टू वेयर, बट काम ऐसा होता है कि वेस्टर्न आउटफिट पहनने पड़ते हैं. लास्ट टाइम मैं उनके शो में आई थी, सो उस टाइम का अलग एक्सपीरियंस था. इस बार एज अ मॉडल आई हूँ तो ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट फीलिंग एंड अच्छा लगा. काफ़ी डिफरेंट शो है एंड यहाँ पे सिर्फ एक फैशन के तौर पे लड़कियों को या फिर मॉडल्स को नहीं लाया जाता है, एक कह सकते हैं एक नेशनल मैसेज भी देते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. की तरफ से ये जो नारी शक्ति
अवार्ड है। ये महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। देश की आधी जनता जो है वो महिलाओं की है, और जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो देश आगे बढ़ता है। महिलाओं को प्रोत्साहित करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, और इसमें नाम मात्र भी अगर हम योगदान दे सकें तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिकग्निशन के लिए। और महिलाओं के लिए अगर थोड़ा भी हम में से कोई भी उन्हें एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है तो बहुत बहुत ही यहाँ सौभाग्य महसूस कर रही हूँ।